Good morning, class. Good morning, ma'am. Yes, good morning. So, uh, today we'll start with new topic, that is distance vector routing with RIP. Yes, is the screen visible to all? Yes, ma'am. Okay, everyone. Okay, class. So we'll start with distance vector routing with RIP. So, before starting this topic, uh, first of all, I have discussed about RIP. I've told you what is RIP. RIP is Routing Information Protocol. Okay, so there are some of the important and specific routing protocols used. For example, OSPF was one of the routing protocol we discussed. We took the example of OSPF and RIP. That is also one of the important and specific routing protocol. RIP, that is Routing Information Protocol. Okay, so basically, what is RIP? It is one of the oldest routing protocol used in internet and is used in many places that are based on distance vector. So we can say RIP is also distance vector routing with RIP because it is used in that places which are based on distance vector routing. So this is a bit mathematical topic, so we'll discuss now. Before moving to RIP, let's discuss what is distance vector. For example, I'm taking a node X. So the distance vector of node X will be the minimum distance from X to all the other nodes present in the network. I am repeating, जब भी हमें distance vector किसी भी node का निकालना है, it means that is the minimum distance from that node to all the nodes that are present in the network. For example, I will take a network A, B, C, E, D, and F. This is the network, and these are the nodes, or you can say these are the routers that are connected through links. Okay. So, if I need to find the distance vector of node A, that is the minimum distance from A to all the other nodes present. ए से बाकी राउटर्स या नोड्स तक जाने के लिए हमें जो डिस्टेंस मिनिमम होगा दैट इज द डिस्टेंस वेक्टर. समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस क्लास. Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे जो नोड्स हैं दे आर राउटर्स ओनली. सपोज डिस्टेंस वेक्टर ऑफ ए इट इज गिवन बाय 1 2 2 1 1. इट मींस ए से बी तक जाने के लिए जो हमें डिस्टेंस लगेगा दैट इज 1. ए टू सी जाने के लिए डिस्टेंस लग रहा है दैट इज 2. सी 1 प्लस 1. अगर ए से बी तक उन्होंने मेंशन किया है 1 है, तो ए से सी तक उन्होंने क्या मेंशन किया? इट इज 2. अगेन ए टू डी, डी ये रहा, यहां तक आने के लिए भी हमें डिस्टेंस कितना उन्होंने ग्राफ में मेंशन किया है क्वेश्चन में? 2. A to E is again 1. A to F, it is again 1. Means this is the minimum distance that is required to move from node A to all the other nodes present in the network. So that is nothing but the distance vector of this node A. Okay. So I can say this is the shortest path. So इस type की जो problem होती है, इसको क्या कहते हैं हम? This is the shortest path problem. This type of problem is shortest path problem. And जो ये distance mention किया है, that is nothing but the number of hops. I've already discussed hops क्या होते हैं. Yes, anyone? Yes. याद है? Next hop we have discussed routing decisions में. Anyone? What is hop? मैम जो Yes. बाकी के राउटर्स कनेक्टेड होते हैं. यस, मतलब हाँ जी, राउटर्स को ही कह सकते हो. यहाँ पे
मैंने कहा है जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ हॉप्स, मतलब यहां तक आने के लिए एक हॉप को हमें ट्रेवल करना पड़ा, यहां तक आने के लिए 2 हॉप्स थे, तो दैट इज ओनली द नंबर ऑफ हॉप्स. सो जो ये डिस्टेंस वेक्टर्स हैं दैट आर यूज्ड टू कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ, ये आपको याद रखना है. जो ये डिस्टेंस वेक्टर है, अगर सपोज मैं ए का कैलकुलेट कर रही हूं, दैट इज यूज्ड टू कंप्यूट द शॉर्टेस्ट पाथ. So distance vector is nothing but it is the minimum distance from a particular node to all the other nodes present in the network. Okay, so we'll take an example. अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग विद आरआईपी, तो आप बताओगे कि बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं, उसमें से एक कैटेगरी है आरआईपी की, दैट इज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. ओके, ये सबसे पुराना प्रोटोकॉल है दैट इज यूज्ड इन इंटरनेट एंड इट इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस दैट आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर. सो डिस्टेंस वेक्टर क्या है ये आप बताओगे, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड टू ऑल द अदर नोड्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क. आप ये एग्जांपल के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर दोगे. फिर एक कोई भी एग्जांपल लेके डिस्टेंस वेक्टर को एक्सप्लेन कर दोगे अगर उन्होंने विद एग्जांपल पूछा है तो. ठीक है, हम देखते हैं. मैं एक एग्जांपल से आपको इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. बेसिकली जब भी हम डिस्टेंस वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज होते हैं, तो उसको कह सकते हैं हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स आर यूज्ड. विल टेक एन एग्जांपल. ओके, सी in this network we have 5 nodes connected, means we have 5 routers and all the nodes, or you can say all the routers, they are connected through the links. हाँ जी, ये हमारा नेटवर्क एग्जांपल में दिया हुआ है. ओके, इसमें जो डिस्टेंस और यू कैन से डिस्टेंस और कॉस्ट भी मेंशन हो सकती है एग्जांपल में. कंफ्यूज नहीं होना, कॉस्ट एंड डिस्टेंस इज वन एंड द सेम थिंग. इसमें जो कॉस्ट और डिस्टेंस मेंशन है वो है 1, 3, 4, 2 and 6. I am repeating. A particular network is given in which 5 routers are connected, okay, and they are connected through the links, and the distance, or you can say cost, is also mentioned. Okay, now each of the router, it will share the information about the network and will help in forwarding the data. जो ये राउटर्स कनेक्टेड हैं ये खुद के साथ इंफॉर्मेशन पूरे नेटवर्क की शेयर करते हैं, तभी डेटा ट्रांसफर, डेटा पैकेट्स ट्रांसफर होंगे. उसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए हम डिस्टेंस वेक्टर निकालते हैं. देखते हैं क्यों, कैसे निकालेंगे. सो सबसे फर्स्ट स्टेप, जब भी आपको डिस्टेंस वेक्टर निकालना है आप क्या बनाओगे, राउटिंग टेबल्स बनाओगे हर एक पर्टिकुलर नोड के लिए. यहाँ पे 5 नोड्स हैं or you can say 5 routers are present. So each of the router will update its routing table. हमको routing table देखना है जिसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स देखें होंगे routing table में. First is the destination. Destination means कहाँ पे जाना है. Next is distance or you can say cost. And third is next hop. Okay, so we'll see. First of all, इस नोड के लिए देखते हैं. नोड 1 के लिए अगर मैं इसका राउटिंग टेबल बनाऊं, राउटिंग टेबल फॉर नोड 1. यस क्लास, आई हैव टोल्ड यू सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डेस्टिनेशन. सेकेंड इज डिस्टेंस, देन नेक्स्ट हॉप. ओके, सो सबसे पहले अगर N1 से मुझे N1 पे ही जाना है, एक केस तो ये भी होगा N1 से अगर N1 पे ही जाना है, नेक्स्ट N1 से N2 पे जाना है, नेक्स्ट N1 से N3 पे जाना है,
नेक्स्ट N1 से N4 पे जाना है एंड N5 पे, नोड नंबर 5। सो देखते हैं डिस्टेंस क्या क्या कवर करेंगे। सी N1 टू N1, यहाँ पे कोई भी डिस्टेंस मेंशन नहीं है, N1 टू N1 ही जाना है, मींस हमें जीरो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट हॉप मींस अगला राउटर कौन सा होगा, N1 ही होगा। N1 से चले हैं तो N1 पे ही पहुंचेंगे एंड जीरो डिस्टेंस या कॉस्ट हमें कवर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट N2, N1 से हमें N2 पे जाना है। सी कितना डिस्टेंस मेंशन किया गया है क्वेश्चन में? यस, एनीवन? मैम वो N1 से N1 वाला नहीं समझ में आया वो मैम, उसके साथ तो N2 दिया है मैम, फिर वो N1 पर N1 से कैसे? बच्चे जो राउटिंग टेबल है उसमें अगर हम पहले नोड के लिए बना रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी? अगर N1 टू N1 ही डिस्टेंस कवर करना है, N1 टू N2, फिर N3, N4, N5। अब N1 टू N1 सेम ही नोड है तो हमें डिस्टेंस जीरो कवर करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हॉप क्या होगा, हम कहाँ पे पहुंचेंगे? N1 पे ही पहुंचेंगे। तो ये एक, इसकी एक केस ये भी बनेगा। ओके यस मैम। ओके। नेक्स्ट सी N1 टू N2 जाना है, कितना डिस्टेंस कवर होगा? एनीवन? मैम 1। 1, हाँ जी मेंशन है 1। और हम कहां पे पहुंच जाएंगे नेक्स्ट हॉप? N2। फिर N1 टू N3 जाना है। यस, सी डायरेक्ट जो क्वेश्चन में N1 टू N3 डायरेक्ट तो कोई डिस्टेंस उन्होंने मेंशन नहीं किया। क्वेश्चन में क्या मेंशन है? N1 टू N2 जाएंगे, फिर N2 टू N3 जाएंगे। डायरेक्ट N1 टू N3 तो नहीं मेंशन, क्योंकि अब एक ये पाथ भी फॉलो हो सकता है, एक पाथ ये भी फॉलो हो सकता है, राइट? तो हमें कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं पता, तो हम इस केस में क्या लेंगे? इनफाइनाइट। एंड नेक्स्ट हॉप भी हम डिफाइन नहीं करेंगे। मैम ये नेक्स्ट, स्टेप रिपीट करना एक बार। हाँ जी आई एम रिपीटिंग। जो इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट स्टेप पे जब हम राउटिंग टेबल बनाते हैं पर्टिकुलर नोड का, तो आप वही राउटिंग टेबल में डिस्टेंस को मेंशन करोगे जो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन्ड है। मींस N1 टू N2 डायरेक्ट उन्होंने बताया है कि डिस्टेंस कितना है, 1। बट N1 टू N3 डायरेक्ट तो कोई कनेक्शन नहीं है। मींस इसके दो पॉसिबल राउट्स हो सकते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो डायरेक्ट नहीं हमें पता, तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस क्या लेंगे? इनफाइनाइट लेंगे। जैसे कि N1 और N2 का उन्होंने क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस 1 मेंशन किया है, बट टू N3 कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है। N1 टू पहले N2 आना पड़ेगा, देन N2 टू N3 जाना पड़ेगा। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस मैम। सो आप इस केस में क्या लोगे? इनफाइनाइट। नेक्स्ट N4, N1 टू N4 जाने के लिए डायरेक्ट है कुछ? यस, एनीवन? डायरेक्ट तो नहीं है N1 टू N4। अगेन इनफाइनाइट एंड नेक्स्ट हॉप इज नॉट डिफाइंड। देन N1 टू N5, अगेन कोई डायरेक्ट नहीं है, इसमें भी दो पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं। तो दिस इज अगेन इनफाइनाइट एंड नेक्स्ट हॉप विल बी नॉट डिफाइंड। समझ आया राउटिंग टेबल नोड 1 का? यस क्लास? वैसे ही नोड्स के हम अपडेट करेंगे। इसमें कोई डाउट क्लास? यू कैन आस्क मी। हाँ जी, इज इट क्लियर? If you will not reply, I'll assume that the things are clear and I'll move further. Is that clear? मैम क्लियर है मैम। जो Yes. ये जो मैम दिया हुआ था नोट्स के बीच में 1 6, मैम ये एस्टिमेटेड डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में या कॉस्ट है इनका? बच्चे, मैंने आपको जब राउटिंग डिसीजंस डिस्कस किए थे, आई टोल्ड यू डिस्टेंस या कॉस्ट, क्वेश्चन में कुछ भी जो मेंशन होगा दैट इज द पर्टिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम ओनली। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया गया कि कॉस्ट बिटवीन नोड 1 टू नोड 2 इज 1, कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज डिस्टेंस ओनली। यू विल टेक इट एज डिस्टेंस ओनली। ओके, यस मैम। सो डायरेक्ट जो डिस्टेंस या कॉस्ट मेंशन है वही आप फर्स्ट स्टेप पे, इनिशियल स्टेप पे अपडेट करोगे। जो डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं है उस केस में
दो राउटिंग पाथ्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा राउटिंग पाथ्स हो सकते हैं, तो हम उस केस में डिस्टेंस इनफाइनाइट लेंगे। ओके, उसी वे में नेक्स्ट आप बना सकते हो। यस, ईच वन ऑफ यू विल गिव मी द आंसर नाउ। नेक्स्ट, how will make the routing table for node 2? Yes, routing table for node 2. मैम इसमें N1 कंसीडर नहीं करेंगे ना? सारे बच्चे राउटर्स जो भी कनेक्टेड है या सारे नोड्स जो भी कनेक्टेड है, हम सभी को कंसिडर करेंगे। ओके मैम। यस, फर्स्ट कॉलम क्या है? डेस्टिनेशन। सेकंड कॉलम क्या है? डिस्टेंस। नेक्स्ट, अगला कॉलम क्या है? नेक्स्ट हॉप। यस, सबसे पहले N2 से अगर मुझे N1 पे जाना है, देन N2, N3, N4, N5, यही 5 राउटर्स कनेक्टेड है। यस, N1, N2 टू N1 जाना है, क्या डिस्टेंस लोगे? N2 टू N1? मैम 1। 1। यस, एंड नेक्स्ट हॉप क्या होगी आपकी? मैम N1। या N1। फिर N2 टू N2 जाना है। यस, N2 टू N2? मैम 0 0। 0, एंड नेक्स्ट हॉप N2 रहेगा। देन N2 टू N3 जाना है। 6 6, नेक्स्ट हॉप विल बी N3। नेक्स्ट N2 टू N4 जाना है, डायरेक्ट है कनेक्शन, infinite infinite, and it will be not defined. Again, N2 to N5, 3 and it is next hop will be next hop N5, हम N5 पे पहुंच जाएंगे। ओके, वैसे ही पैरेलली जब भी एक राउटिंग टेबल किसी पर्टिकुलर नोड का अपडेट होगा, पैरेलली सारे राउटिंग टेबल्स क्या होंगे? अपडेट हो जाएंगे। नेटवर्क ऐसे ही काम करता है, जब भी राउटर्स कनेक्टेड हैं, तो राउटर्स ने जब भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, वो कैसे करेंगे? अगर वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तभी डेटा पैकेट्स ट्रांसफर होंगे। तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? डिस्टेंस वेक्टर की, बिकॉज डिस्टेंस वेक्टर की हेल्प से ही हमारे डेटा पैकेट्स ट्रांसफर होंगे। तो जब भी पहला स्टेप क्या होगा? हम राउटिंग टेबल को क्या करेंगे? अपडेट करेंगे इनिशियली। तो जब भी एक पर्टिकुलर नोड का अपडेट होगा, पैरेलली सारे राउटिंग टेबल्स क्या हो जाएंगे? अपडेट हो जाएंगे। जैसे N2 का हो गया, वैसे बना लोगे खुद? यस क्लास, take your notebooks and do it fast, and come on, give me the answers class. Yes, now N3 to क्या क्या पॉसिबल हमारे कंडीशंस होंगे? N3 to हमें N1 जाना है, फिर N2, N3, N4, N5। अगर हमें N3 से N1 जाना है तो कुछ क्या डिस्टेंस होगा? N3 टू N1 जाना है तो यस, सॉरी बच्चे, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ जी, कम ऑन, गिव मी द आंसर, you were not audible. infinite Yeah, infinite, and it will be not defined. Next, N3 to N2 जाना है, मैम N3 6। to N6, and next hop will be N2. Then N3 to N3, 0 and next hop will be N3. Then N3 to N4, 2 2, yes. Next hop आपकी क्या होगी? N4. Then N3 to N5, infinite ma'am yeah, infinite, and it will be not defined. समझ आ रहा है class what I am doing? हाँ जी, others.
Are you getting? Yes, ma'am. Okay. वैसे ही आप राउटिंग टेबल N4 और N5 का बनाओ. Yes. Rest of the class will give me the answers. Come on. Update the routing table for node number 4 and node number 5. Routing table will include destination, distance, and next hop. N4 से N1, N2, N3, N4 and N5. Yes. N4 to N1 क्या distance होगा? Infinite है मैम. Infinite. Yes. Next N4 to N2. मैम वो भी infinite. Yeah. Then N4 to N3. 2. Next hop will be N3. Then N4 to N4. 0. 0. Yes. N4 to N5. 4. Yeah. बहुत easy है. आपको देख के ही बनाना है just. This will be the routing table for node number 4. वैसे ही routing table for node number 5 क्या बनेगा? Destination, distance or cost and next hop. Yes, it will be infinite 3, infinite 4, 0. हाँ जी, यही आ रहा है सबका? यस, राउटिंग टेबल यही बन रहा है सबका? Yes मैम. ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमने राउटिंग टेबल बना दिया हर एक पर्टिकुलर नोड जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड थे, राइट? नेक्स्ट स्टेप, अब हर नोड का हमारे पास राउटिंग टेबल है, बट हम इंफॉर्मेशन को कैसे शेयर करेंगे? सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Routers, they will share the distance vector with their neighbors. I am writing. Next step क्या होगा? Each of the router, or you can say each of the node, will share their distance vector. That is, distance vector क्या है? The shortest path. उसको शेयर करेंगे, और यू कैन से दे कैन शेयर एरे ऑफ वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस वेक्टर. जो डिस्टेंस वेक्टर की वैल्यूज हैं, जो उनका एरे ऑफ वैल्यूज है, उसको शेयर करेंगे विद देयर नेबर्स. मतलब हर एक राउटर जो या फिर जो नोड है, उनके जो नेबर्स हैं, वो उनके साथ किसको शेयर करेंगे? डिस्टेंस वेक्टर को. डिस्टेंस वेक्टर में ऑलरेडी बता चुकी हूं, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड टू ऑल द नोड्स प्रेजेंट. तो हमने जो बनाए थे, इस केस में डिस्टेंस वेक्टर कौन से हो गए? शॉर्टेस्ट पाथ यही वाला था. दीज आर द डिस्टेंस वेक्टर्स. जो डिस्टेंस लिखा है, दैट जो सेकंड कॉलम है, दीज आर द डिस्टेंस वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द राउटिंग टेबल. जो इनिशियली राउटिंग टेबल हमने बनाए थे, उनके डिस्टेंस वेक्टर्स कौन से हैं? जो सेकंड कॉलम में हमने मेंशन किए थे. दिस इज फॉर नोड नंबर 1. वैसे ही नोड नंबर 2 और नोड नंबर 3 के लिए भी हमने बनाए थे. These are the distance vectors for node number 2, 3, 4 and 5 according to the routing table number 1. Now, अब क्वेश्चन में ध्यान देना क्लास. I've told you each of the router, they will share the distance vector or the array of values with their neighbors. So इस केस में देखो, जो नोड 1 है, नोड 1 का नेबर कौन है? सिर्फ नोड नंबर 2. मींस नोड नंबर 1 will share the distance vector with node number 2, or I can say node number 2 will share with node number 1. समझ आ रहा है? इसका नेबर यही है. वैसे N2 का कौन से नेबर्स हैं? N5 and N3. So N2 will share the distance vector with node number 5 and node number 3.
वैसे ही N5 का बताओ। यस, N5 किसके साथ शेयर करेगा? मैम N4 and एंड N2। या N4 N2 के साथ, N3 N4 और N2 के साथ शेयर करेगा। सो आई कैन से node number 1 will share the routing table, or you can say the distance vector with N2. N2 किसके साथ शेयर करेगा? N2 will share with N5 and N3. N3 किसके साथ शेयर करेगा? N4 and N2 के साथ। N4 N2 N4 किसके साथ शेयर करेगा? नोड नंबर 4 with N4 and N5, and node number 5 will share with N2 and N4. So अब अगला स्टेप क्या होगा? हर एक जो नोड है या राउटर है वो अपने Excuse me, डिस्टेंस ma'am. वेक्टर को, हाँ जी बच्चे, या मैम N2 N1 के साथ शेयर नहीं करेगा? N1 भी नेबर है ना N2 का? N2, N2 हाँ N1 जी के हाँ साथ जी, शेयर नहीं करेगा? yeah, N1 is also the neighbor. I've missed it. N2 will share with N1 also. Yeah. So next step is each of the router will share the distance vector with their neighbors. And आप लिख लोगे कि N1 का नेबर कौन है, N2 का नेबर कौन है, हर एक नोड के जो नेबर्स हैं उनको आप लिख लोगे, ताकि हमें इजीली अगले स्टेप में इजी हो जाए कि हमें कौन कौन से डिस्टेंस वेक्टर्स किसके साथ शेयर करने हैं। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज, अब शेयरिंग होगी तो ऑब्वियसली जो राउटिंग टेबल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? अपडेट हो जाएंगे। राउटिंग टेबल्स ऑफ ईच नोड विल बी अपडेटेड। क्यों अपडेट होंगे? बिकॉज हमें अब डिस्टेंस वेक्टर को शेयर करना है, मतलब अब हमें दोबारा हर एक पर्टिकुलर नोड के लिए राउटिंग टेबल बनाना पड़ेगा। सपोज मैं नोड वन के लिए डिस्कस करती हूँ। अब N1 किसके साथ शेयर कर रहा है? N2 के साथ। और आई कैन से N2 का जो राउटिंग टेबल है वो किसको मिलेगा? N1 को। समझ आ रहा है क्लास? आर यू गेटिंग? सी नोड 1 का नेबर N2 था, मींस N2 का जो डिस्टेंस वेक्टर है वो किसके साथ शेयर होगा? नेबर कौन है? N1। तो आप एक साइड पे जब भी हम जब भी हम इसको अपडेट करेंगे राउटिंग टेबल को, आप एक साइड पे जो नेबर है उसका क्या लिख लोगे? डिस्टेंस वेक्टर। सो द डिस्टेंस वेक्टर N1 के केस में हम किसका लेंगे? N2 का। डिस्टेंस वेक्टर ऑफ N2, यस, N2 का हमने राउटिंग टेबल कहां बनाया था? हाँ जी, इसमें इसका डिस्टेंस वेक्टर ये है 1 0 6 infinite 3। तो डिस्टेंस वेक्टर ऑफ N2 इज 1 0 6 infinite and 3। Yes, is it clear what I've written? Yes, class, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now the step is to update the routing table. So how we'll update it? Routing table के वही columns होंगे, destination, distance vector, and next hop. Okay, so जब वही N1 से हमें जब N1 पे जाना है, N2 पे जाना है, N3 पे जाना है, N4 पे एंड N5 पे। हाँ जी, अब क्या क्या डिस्टेंस लगेगा? पे अटेंशन क्लास। जब भी N1 से, अब दोबारा आप इस क्वेश्चन को देखो, जब भी N1 से N1 पे जाना है तो ऑब्वियसली उसी पॉइंट पे जाना है, तो जीरो डिस्टेंस एंड नेक्स्ट हॉप क्या होगी आपकी? N1। नेक्स्ट जब आपने N1 से N2 पे जाना है, N1 पे N2, N1 से N2 पे जाना है, तो अगेन ध्यान दो, N1 से N2 हम डायरेक्ट जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट मेंशन किया है। तो इस केस में आप क्या लोगे? 1, दैट इज द डिस्टेंस, एंड विल रीच टू N2। नेक्स्ट स्टेप, नाउ पे अटेंशन क्लास। जब हमें N1 से N3 जाना है, आई हैव टोल्ड यू दो पॉसिबल राउट्स हैं, एक ये राउट फॉलो कर सकते हैं, एक हम ये कर सकते हैं। अब
केस देखो, n1 का नेबर कौन है, n2, तो दो केसेस बनेंगे। अगर हम इस राउट की बात करें, यस क्लास, अगर हम इस राउट की बात करें, मैं यहीं लिख रही हूं, अगर मैं इस राउट की बात करूं, सी मींस n1 टू n2 पहले जाएंगे, प्लस फिर n2 टू n3 जाएंगे, यही होगा। n1 से n2 जाएंगे, फिर n2 से n3 जाएंगे। अब n1 से n2 क्या डिस्टेंस मेंशन किया गया है, 1। n2 टू n3 क्या डिस्टेंस मेंशन किया गया है, 6। तो टोटल डिस्टेंस क्या बन गया, 1 + 6 7। दूसरा पाथ क्या हो सकता था, ये। अब n1 से हमें n3 पे जाना है, राइट। n1 का नेबर कौन है, यस, व्हाट इज वी हैव शेयर्ड द डिस्टेंस वेक्टर विद n1। किसका डिस्टेंस वेक्टर हमने शेयर किया था, नेबर का। हु इज द नेबर फॉर n1, N2 मैम। N2 n2। मींस जब भी हमें n3 पे जाना है, एक बात ये था, दूसरा बात देखो, अगेन n2 को तो हमें इंक्लूड करना ही है बिकॉज दैट इज द नेबर। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, हमें n1 से n2 पे जाना है पहले, देन n2 टू n3 डायरेक्ट, n2 टू n3। अब n1 टू n2 जाने के लिए हमें डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया है 1, बट n2 से n3 जाने का इस पाथ के अकॉर्डिंग कोई डिस्टेंस है, यस। इस पाथ के अकॉर्डिंग तो डायरेक्ट तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इस केस में इनफाइनाइट है। ये डिस्टेंस बड़ा हो गया इसके कंपैरेटिवली, तो हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे, ये वाला, दैट इज 7। तो हम इसमें अपडेट करेंगे 7 एंड विल रीच टू n3। या फिर आप डायरेक्ट यहां से भी देख सकते हो, जो हमने साइड पे लिखा था डिस्टेंस वेक्टर n2 का, हमें n3 पे जाना है, ये n3 के लिए था थर्ड वाला, दैट इज 6। ओके, दैट इज 6। इस टेबल पे देखो, n1 से n3 जाना है, तो जो डिस्टेंस वेक्टर n2 का लिखा था उन्होंने मेंशन किया है कि 6 लगेगा, प्लस 1 भी करेंगे, 1 + 6 दैट विल बी 7। आप उसको सॉल्व करके भी देख सकते हो कि जब भी n1 से n2 जाना है, तो इंटरमीडिएट कौन है, नेबर कौन है, n2। तो पहले n1 टू n2 जाएंगे, फिर n2 टू n3 जाएंगे, दैट इज 1 + 6 7। बट जो दूसरा पाथ है, सेकंड पाथ है, वो हमारा क्या है, डिस्टेंस उसका ज्यादा कवर करना पड़ेगा, सी दैट इज 3 + 4 + 2। अगर हम वैसे कैलकुलेट करके देखें वो भी ज्यादा है, तो हम इस पाथ को फॉलो करेंगे बिकॉज हमें डिस्टेंस वेक्टर में क्या लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है। तो 1 + 6 दैट विल बी 7। अब डायरेक्ट भी इसको अपडेट कर सकते हो। अब जब भी हमें n1 से n4 पे जाना है, यस, n1 टू n4 क्या डिस्टेंस होगा, सोचो, यस क्लास, पे अटेंशन, सोच के बताओ, n1 टू n4 जाने के लिए हमें क्या डिस्टेंस लेंगे हम। आप डिस्टेंस वेक्टर भी ध्यान में रखो, n4 तक यहाँ पे इनफाइनाइट है, क्या डिस्टेंस लगेगा, हाँ जी, एनीवन, यस एनीवन। हम इन्फिनाइट। या इनफाइनाइट। सी, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो क्लास, डायरेक्ट भी देख सकते हो। देखो अब हमें n1 से n4 को अपडेट करना है राउटिंग टेबल में, मींस डिस्टेंस हमें क्या कवर करना है, n1 से लेके n4 तक का, राइट। पर ध्यान देना कि इसका n1 का नेबर n2 है, मतलब नोड नंबर 2 को तो हमें इंक्लूड करना ही है। तो हम क्या डिस्टेंस लेंगे, n1 टू n2 प्लस n2 टू सीधा n4। अब देखो n1 टू n2 क्या डिस्टेंस दिया है, 1, पर n2 से n4 तक कोई डायरेक्ट तो लिंक नहीं दिया ना। इसमें भी दो केस बन सकते हैं, एक पाथ ये हो सकता है, एक पाथ ये हो सकता है। तो इस केस में हम क्या लेते होते हैं, इनफाइनाइट। नाउ 1 + इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट, तो हम क्या डिस्टेंस में लिखेंगे, इनफाइनाइट, एंड दैट इज नॉट डिफाइंड।
समझ आया क्लास व्हाट आई हैव डन? यस क्लास, समझ आया? और आई शैल रिपीट इट। हाँ जी, शैल आई रिपीट? और द थिंग इज क्लियर, इनफाइनाइट समझ आ गया कैसे लिखा है? नो मैम, एक बार और बता दो। हाँ जी, सी दिस इज द डायग्राम, ये नेटवर्क दिया गया है। अब इनिशियली हमने राउटिंग टेबल को अपडेट कर दिया है, सेकंड स्टेप हमें अपडेट कैसे करना है राउटिंग टेबल्स को, हम इसमें इंक्लूड करेंगे कि नोड yes class, can you hear me? Yes, ma'am. So sorry, there was some network problem, so I got disconnected. Okay, class, I'll hardly take 2 minutes more. See, I've told you
आप अभी तक जो हमने किया है स्टेप नंबर 1, जब भी हमें डिस्टेंस वेक्टर कैलकुलेट करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप आप देखोगे जो हमारा नेटवर्क कैसा है, उसमें कितने नोड्स या राउटर्स कनेक्टेड हैं, ओके, और क्या क्या कॉस्ट या डिस्टेंस मेंशन्ड है। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, इनिशियली हर एक नोड के लिए राउटिंग टेबल बनाओगे। उसमें आप जो डिस्टेंस लोगे, जो डायरेक्ट कनेक्शंस दिए गए हैं वही डिस्टेंस लोगे, और जो जिसका डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं मेंशन, उस केस में इनफाइनाइट लोगे। नेक्स्ट स्टेप, हर एक जो राउटर है और जो नोड है वो अपने डिस्टेंस वेक्टर को शेयर करेंगे अपने नेबर्स के साथ सिर्फ। जैसे कि मैंने पहला केस ले रही हूं, मींस हर एक नोड अपने डिस्टेंस वेक्टर को सिर्फ और सिर्फ अपने नेबर्स के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि n1 है, n1 का नेबर कौन है, n2, सो n1 n2 के साथ अपना डिस्टेंस वेक्टर शेयर करेगा, या फिर मैं कह सकती हूँ n1 किसके डिस्टेंस वेक्टर को कंसिडर करेगा, n2 के साथ। और दोबारा हमारे जो राउटिंग टेबल है वो क्या हो जाएंगे, अपडेट। तो जो नेक्स्ट राउटिंग टेबल हम अपडेट करेंगे, अगर मैं n1 की बात करूं, सबसे पहले आप इसके डिस्टेंस वेक्टर को लिखोगे, किसके, नेबर, नेबर कौन है, n2, n2 के डिस्टेंस वेक्टर को लिखोगे, फिर इसका टेबल बनाओगे। टेबल में जो पॉइंट्स हैं, दैट इज डेस्टिनेशन, डिस्टेंस एंड नेक्स्ट हॉप। नाउ n1 टू n1 जाना है तो देखो 0 डिस्टेंस कवर करेंगे, n1 से n2 जाना है तो मेंशन ही है, 1 डिस्टेंस कवर करेंगे। अब n1 टू n3 जाना है तो डायरेक्ट तो कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, बट हमें बीच में अब n2 को कंसिडर करना है क्योंकि n2 नेबर है। तो n1 से हम पहले n2 जाएंगे, दैट इज 1, फिर n2 से n3 जाएंगे, दैट इज 6, सो 1 + 6 दैट विल बी 7। वैसे ही जब हमें n1 से n4 जाना है तो अब कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट हमें n2 को कंसिडर करना है बीच में। तो n1 से जब n2 जाएंगे, दैट इज 1 डिस्टेंस। अब n2 से n4 तो कोई डिस्टेंस नहीं है, तो इनफाइनाइट, दैट इज 1 + इनफाइनाइट। क्या होता है 1 + इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। यस क्लास, इज दैट क्लियर? तो इस केस में हम क्या ले रहे हैं, इनफाइनाइट। यस, इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। हाँ जी, लास्ट केस में बताओ, n1 टू n5 जाने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, क्या होगा डिस्टेंस? मैम 4। मैम 4 4 होगा। 4। हाँ जी, सी n1 टू n5, तो पहला केस हम क्या लेंगे, n2 को कंसिडर करेंगे, दैट इज 1, देन n2 टू n5 that is 3, 1 plus 3 is 4, and we'll reach to n5. So this is the final and routing table जो अपडेट हो गया किसके बाद, जब भी डिस्टेंस वेक्टर शेयर किया गया उसके बाद जो राउटिंग टेबल अपडेट हो गया है, ये वो राउटिंग टेबल है। अब इसके बाद n1 बाकी सारे नोड्स के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकता है, मींस डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर कर सकता है। जब एक नोड का राउटिंग टेबल अपडेट हो जाएगा, पैरेलली बाकी नोड्स के भी राउटिंग टेबल अपडेट हो जाएंगे। वैसे ही n2, n3, n4 एंड n5 नोड्स, इनके भी राउटिंग टेबल्स क्या हो जाएंगे, अपडेट। सो दिस इज द होम टास्क, यू हैव टू update the routing table for n2, n3, n4, n5. Note down this question and you have to update it. अगर डाउट होगा, we'll discuss in the next class. I will discuss it in the next class, but give it a try. आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा करोगे। फर्स्ट स्टेप, राउटिंग टेबल बनाओगे हर नोड के लिए। नेक्स्ट, नेबर्स देखोगे, उसके साथ उनका डिस्टेंस वेक्टर को शेयर करना है और राउटिंग टेबल को अपडेट करना है। नोड नंबर 1 का मैं बता चुकी हूँ, बाकी नोड्स के लिए आप खुद अपडेटेड राउटिंग टेबल बना के आओगे। इज दैट क्लियर क्लास? यस, इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. ओके, ओके, एंड विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास अगर कोई भी डाउट हुआ। ओके, सो आई टेक द अटेंडेंस। Yes, I'll take the attendance. Give me a minute.